ओके गाइस, आज हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले सीक्वेंस सीक्वेंस का मतलब क्या है? हाँ पर वह डेफिनेटली ऑन कर लो, नो प्रॉब्लम। सीक्वेंस का मतलब क्या है? इट्स जस्ट एन इंग्लिश वर्ड। व्हाट डू यू थिंक सीक्वेंस Events इज? occurring repeatedly. कुछ ऑर्डर देख रहे हैं, कुछ ट्रेंड ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट इज ओनली कॉल्ड एज सीक्वेंस। कुछ भी, एनीथिंग, एनी पैटर्न दैट इज बीन ऑब्जर्व्ड, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ दिस, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ दिस इवेंट्स that resulted in this disaster or in this invention or something. So all these are called as sequence. For example, different kinds of sequence है, different kinds of patterns है। तो अपने JEE level के portion में there are certain set of patterns which you are mainly going to observe and practice on, and these are the most commonly occurring patterns in various places. Okay, now the most basic pattern like 1 2 3 4 5 and so on, what have you observed in this pattern? Natural. Natural numbers is absolutely correct. Okay, like Difference of one. yes, like 1 3 5 7, then what will be the next number? Odd or 9. Next number will definitely be 9. Next number will definitely be 9. So this is a sequence. Now what have you observed in this sequence? +2. Common difference. Plus 2. The difference is common. The difference of every two numbers is common, and hence that is why this is called as common difference. Of course, you must have studied all this in school. Yeah, that is why common difference is 2. Also note that common difference हमेशा second term minus first term बोलेंगे, first term minus second term नहीं. तो 3 minus 1, 5 minus 3, 7 minus 5, इन सबको common difference बुलाएंगे. अच्छा, I am going to write few more sequences. I just want you guys to predict what might be the next one. Next क्या होगा? 16. 16. Okay. Is it clear, everybody else? Yes, sir. Yes, sir. But- Can you please repeat because I was disconnected. Okay. कुछ नहीं मिश्री, बस ये देख रहे कि पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं, पैटर्न को सीक्वेंस बोलते हैं। तो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स मतलब एक नंबर्स व्हिच आर फॉलोइंग ए सर्टेन पैटर्न। हियर व्हाट वी आर सेइंग मिश्री इज 1 2 4 8 है, देन व्हाट माइट बी द नेक्स्ट नंबर? लाइक फॉर एग्जांपल 2 6 18 54 and so on. What have you observed here? 1 1 2 What is the pattern that you are observing? multiply by 3. Multiply by 3, 2 into 3 हो रहा है, फिर 6 into 3 हो रहा है, 18 into 3 हो रहा है, फिर 54 into 3 करके लिख सकते हैं, whatever 1 1 2. Yes, so that is the pattern. It can be something like this also. What about root 2, 2 root 2, 3 root 2, 4 root 2? 5 What root is Here the common difference is root 2. In fact, this series is also called as arithmetic progression only. Arithmetic progression में ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ natural numbers होंगे, irrational numbers भी हो सकते हैं, fractions भी हो सकते हैं. Even if it is something like 2 plus iota, 3 plus 2 iota, 4 plus 3 iota, what might be the next number? 5 plus 4 5 iota. plus 4 5 iota. plus 4 iota. 5 plus 4 iota. So this is some pattern. Like एक और देता हूँ, तुम लोग थोड़ा सोच के बताओ. 1 plus iota, 2 plus 2 iota, 3 plus 4 iota, 4 plus 8 iota. Can you tell me what might be the next one? 5 plus 16 iota. Iota. Yes. What is the pattern that you have observed? Plus 1 and into 2. Yes, ये 1 2 3 4 वो सारे नेक्स्ट होके 5 लग रहा है। फिर आयोटा वाले देखोगे तो आयोटा 2 आयोटा 4 आयोटा 8 आयोटा है, तो यहाँ पे आयोटा वाले को 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नेक्स्ट वन विल बी 5 plus 16 iota. So this is also certain pattern. All these patterns are called as sequences. Like for example, what about this 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4? What about the next one? 1 by 5. 1 by 5. That's it. This is the pattern. So these patterns are mainly discussed in this chapter. Like first thing, these patterns जिसमें common difference same है, these patterns are called as arithmetic progression. इन पैटर्न्स में रेशियो सेम है, तो रेशियो सेम रहता है तो उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ओके, और ये वाला पैटर्न में रेसिप्रोकल्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दे आर कॉल्ड एज हार्मोनिक प्रोग्रेशन. ये सब कुछ मैं अच्छे डिटेल में लिखवाऊंगा. ऑफ कोर्स एक चीज पे एक दो लेक्चर्स हम लोग डिस्कस करेंगे. लाइक फॉर एग्जांपल, आई जस्ट वांट टू गिव यू एन अनदर पैटर्न. आई वांट यू टू गिव इट अ ट्राई एंड प्रेडिक्ट व्हाट माइट बी द नेक्स्ट नंबर. से फॉर एग्जांपल, सब अपना खुद का दिमाग लगाओ, अलग अलग तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं. ओके,
this one 2 6 12 20 and the next one. Just give me, don't tell the answer, just give me 5 seconds. Okay, जिन लोग ने भी भेजा तीनों भी correct हो. Yes, all of you are correct. Everybody who is sending me the text is right. Okay, now you can tell क्या pattern observe कर रहे हो. +2 +4 +8 Plus Okay. 6 plus 2 को 4 ऐड किया, फिर 6 को प्लस 6 ऐड किया, फिर प्लस Plus 8 8. ऐड किया, +10 फिर नेक्स्ट क्या ऐड करने का प्लान है. 10 10. तो ये कह रहा है कि ये कॉमन डिफरेंस जो है वो 2-2 यूनिट बढ़ते जा रहा है. ऐसे करके 30 प्रेडिक्ट किया. डिड एनीबody predict in an another way? Anybody in the class? Okay. One another way to predict the same thing is 2 6 12 20 है, तो 2 को लिख सकते हैं 1 into 2, 6 को लिख सकते हैं 2 into 3, 12 को लिखेंगे 3 into 4, नेक्स्ट वाला 4 into 5 है. इस पैटर्न से ऑब्जर्व करोगे तो नेक्स्ट नंबर विल बिकम 5 into 6, which is also the same 30. So you just have to be creative in observing what is happening. Just keep an eye कि क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं. ऐसे अलग अलग तरीके से लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं. थोड़े लोग ना थोड़ा और sophisticatedly ऑब्जर्व करेंगे. Like 1 square plus 1 है 2. Like 6 is basically 2 square plus 2. 12 is basically 3 square plus 3. Next वाला 4 square plus 4 is 20. 30 is also again 5 square plus 5. तो we can observe it in that particular pattern also. तो तुम लोग जो भी पैटर्न आ रहा है उस तरीके से तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो. जस्ट थोड़ा सा क्रिएटिवली रहो. इसमें कोई गलत मेथड करेक्ट मेथड कुछ भी नहीं है, सारे तरीके हैं. ओके, नाउ आल्सो these are the meaning of sequence. There's something called as series. Series मतलब basically the addition of all of them. Like 1 2 4 8 16 है. See what is the value of the series? मतलब 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16. The addition of the sequence is called as series. Hence the name of the chapter, sequence and series. That is the name of the chapter. There are various sequences and various series. Okay. Progression is also another way of telling sequence only. Okay. ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं erase कर रहा हूँ. This is just a general knowledge that you should understand. Do you guys want to write any of this? No, sir. Okay. Next, the first major part of sequence and series is arithmetic progression. So we are going to commonly call it as AP. Okay. AP में of course examples देने की जरूरत है या सबको पता है arithmetic progression क्या है? पता है. पता है Everybody okay. तो जनरलाइज AP लिखना है, जनरल AP लिखना है. तो फर्स्ट टर्म A रहेगा, तो सेकंड टर्म क्या रहेगा? A plus D A plus D, where D A plus signifies the 2D. common difference, where D signifies the common difference, and A is oftenly represented as the first term. Okay, so A plus D is the, so in fact ये terminology I don't know तुम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं. T1 Yes, मतलब sir. first term is A, T2 मतलब second term is A plus D, then third term is A plus A plus 2D 2D, A plus 3D. So understand that third term is A plus 2D, fourth term is A plus 3D. Now what might be the 100th term? A plus A 99. plus 99 99 दिया आएगा, A plus 99 दिया आएगा. और as a matter of fact nth term अगर कोई पूछे तो nth term will be A plus n minus 1 D. So this is the foremost thing that you should understand, that the general term of an arithmetic progression is A plus n minus 1 into D. A plus n minus 1 into D. Okay. इसमें बोर्ड पे जो भी लिखा है, जो जो पता नहीं है फटाफट लिख लो, जो भी पता नहीं है लिख लो. ओके, हो गया तो बताना जो भी लिख के. अगर कोई लिख रहा है तो, नहीं लिख रहा है तो लेट मी नो, विल प्रोसीड फर्दर. Now, next, another thing, note, do you guys understand the word degree? Power. in the डिग्री मतलब पावर. हाँ, तो nth टर्म में AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म में डिग्री ऑफ n कितना रहेगा? 1 1. डिग्री ऑफ n हमेशा 1 रहता है.
n स्क्वायर नहीं आता कभी भी। हम लोग ना ये वाले थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में ये वाला ट्रिक यूज करेंगे, बट स्टिल अंडरस्टैंड दैट डिग्री ऑफ n इज ऑलवेज 1 इन एन nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी। ओके, ऑल्सो nth टर्म को ना थोड़ा स्टाइलिश तरीके से भी स्टार्ट करते हैं लिखना, लाइक फ्यू बुक्स हैव स्टार्टेड राइटिंग लाइक दिस, कंसीडर द सीक्वेंस, कंसीडर द सीक्वेंस, ऐसे करली ब्रैकेट्स में an करके लिखते हैं, करली ब्रैकेट्स में an करके लिखते हैं। इन अदर वर्ड्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज n का वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, सो इन अदर वर्ड्स दे आर ट्राइंग टू से दैट कंसीडर द सीक्वेंस a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट डॉट। तो उस इस पूरे को लिखने की जगह बस एक जनरल टर्म लिख देते an, an, लाइक फॉर एग्जांपल इफ दे से कंसीडर द सीक्वेंस, ऐसे 2n plus 3 है, 2n plus 3, consider the sequence 2n plus 3 है। so in other words they are trying to say consider the sequence, जैसे कि n को 1 पुट करेंगे, n को 1 पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 1s are 2 plus 3 5, n को 2 पुट कर देंगे 2 2s are 4 plus 3 7, फिर 9 11 and so on। instead of saying 5 7 9 11 and so on, they're just going to write it one curly brackets and 2n plus 3। so in other words they पूरा इस पूरे को कंप्रेस करके लिख रहे हैं, just get accustomed to this language, कंसिडर सीक्वेंस करके दो करली ब्रैकेट के बीच में an करके लिख देंगे। किसी को डाउट है क्या इसमें? ओके, चलेगा। और स्कूल में ये सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, जैसे कि सेकंड टर्म ऑफ एन एपी इज 5, फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 10, फाइंड द एट्थ टर्म। ये से सम्स तुम लोग स्कूल में किए क्या? हाँ Yes, सर, yeah. simultaneous से हाँ, solve। sir। हाँ, ये वाला मैं कंप्लीटली स्किप कर दे रहा हूँ। ऑफ कोर्स होमवर्क में सब कुछ रहता है, बट मैं स्किप कर दे रहा हूँ, ठीक है? Yes, sir. ओके, पक्का ना? किसी को भी जरूरत नहीं है ना उस पे क्वेश्चन? एनीबॉडी इन द क्लास? No, sir. ओके, चलो राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन। ये लिख के हो गया तो बताओ वन सेकेंड। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, राइट डाउन। इफ, एक सेकेंड, if the pth term of an AP is Q, if the pth term of an AP is Q, qth term of an AP is P. If the pth term of an AP is Q, qth term of an AP is P, find the rth term. Find the rth term. If the pth term of an AP is Q, qth term of an AP is P, find the rth term. मतलब इसमें दोनों सीरीज में एक आर टर्म करके कुछ है ना, rth टर्म। rth like rth is like some number, fifth term 10th term जैसा r के terms में रहेगा आंसर। आंसर will be in terms of p, q and r. No, Vineet. Yes, correct. Yeah, I understood that you were typing. Okay. Do you guys need time or do you guys need help? Time. Sure. Jivitesh, you are right. ओके, एक ने भी वीडियो ऑन नहीं किया, बट तुम लोग वैसे ठीक है, लास्ट टाइम ऑन किया तो ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बट कभी कभी ऑन कर लो, एक दूसरे का चेहरा देखोगे तो लाइवली रहेगा क्लास।
युग करेक्ट नहीं है, गर्व इज करेक्ट. Misha correct, Aryan correct, Manav correct, Ayush, what is that answer? That symbol has not been given in the question. Okay. Now, for those who are wondering what to do, nth term of an AP का फॉर्मूला है a plus n minus 1 into d. nth term of an AP का फॉर्मूला है a plus n minus 1 into d. Now pth term has been given to us as q. तो पहले pth term लिख देंगे. pth term of an AP is a plus p minus 1 into d. That has been given to us as q. And qth term is p. So that means a plus q minus 1 into d is equals to p. So these two information has been given. Pth term is q and qth term is p. Achha, now a and d are something which we have assumed for our convenience. So the answer should not be in terms of a and d. The answer should not be in terms of a and d. Okay, now we need to find the rth term. To find the rth term is a plus r minus 1 into d. That is the rth term. So to find the rth term, we'll find the values of a and d and plug it back in this rth term. This is what we need to find. Okay. तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हो? Q minus P. Yes, subtract is the simple answer. तो सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को, तो a और a कैंसिल हो जाएगा. राइट हैंड साइड q माइनस p आएगा. लेफ्ट हैंड साइड d कॉमन आके p माइनस 1 माइनस q माइनस ऑफ q माइनस 1, तो माइनस q प्लस 1 हो जाएगा. और p माइनस q into d is equals to q minus p. That's right, Parv. बहुत टाइम लगा दिया. बाकी लोग भी सॉल्व करो यार फास्ट. d का वैल्यू कितना आ रहा है? -1. -1. d का वैल्यू -1 आएगा. d का वैल्यू -1 आ गया और a का वैल्यू ढूंढना है. a का वैल्यू कैसे ढूंढेंगे? Add. ये और सब्स्टिट्यूट बैक इन द ओरिजिनल टू इक्वेशंस. किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. लाइक d का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो a प्लस p माइनस 1 इंटू -1 इज इक्वल्स टू q, और द वैल्यू ऑफ a कम्स आउट टू बी p प्लस q माइनस 1. दिस इज द वैल्यू ऑफ d and a. d is -1 and a is p plus q minus 1. After finding a and d, all you have to do is find the rth term. तो a plus r minus 1 into d को सॉल्व करना है. जल्दी करो, अभी तक आ जाना चाहिए था आंसर. a is basically p plus q minus 1 plus r minus 1 into -1. ब्रैकेट्स ओपन करो, सिंप्लीफाई करो, 1 1 कैंसिल हो जाएगा. जल्दी करो यार, बहुत टाइम लग रहा है. I thought this was an easy question. What do you guys think? Is it easy or tough? Sir, okay. Okay, इश्ता क्या? Okay. मतलब डिफरेंट है. फर्स्ट टाइम ऐसा What? मुझे लगा ये सब ऐसा स्कूल में जनरल होता है. टर्म्स वाला, मतलब ऐसा Yeah, जनरल school में. नंबर्स के साथ नहीं किया सर, है. ये सब स्कूल ऐसा में नहीं किया. जनरल टर्म्स वाला फर्स्ट टाइम कर रहे हैं. अच्छा, स्कूल में नंबर्स it के साथ just- करते होंगे. अभी यहाँ वेरिएबल्स आ रहे हैं मे बी. हाँ. ओके, तो थोड़ा सा और क्वेश्चंस कराता हूँ प्रैक्टिस फिर. So the answer is p plus q minus r. The answer is p plus q minus r. Okay, मोक्ष अभी भी कंफ्यूज हो रहा है तो बताना. ओके, किसी को डाउट है तो बताओ. Anybody in the class? चलो हो गया, लिख के हो गया तो बताओ. आई विल गिव यू नेक्स्ट सम. Okay, anybody who wants me to wait or explain again? Anandita?
Yes, sir. I thought you unmuted, so I thought you had it out. Do you have it out? Oh, sir, I didn't Okay. unmute. Oh, okay. पता नहीं सडनली तेरा नाम ऐसे पॉपअप ऊपर हो गया इधर है. नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन. टेक योर टाइम एंड सॉल्व इट अगेन. तो आई विल वेट फॉर ए लॉन्गर टाइम देन द प्रीवियस सम. थोड़ा सा उसी टाइप का देता हूँ. राइट डाउन. इफ द mth term of an AP, if the mth term of an AP is 1 by n, nth term of an AP is 1 by m. If the mth term of an AP is 1 by n, nth term of an AP is 1 by m. Find mnth term. Find mnth term. Find mnth term. If the mth term of an AP is 1 by n, nth term of an AP is 1 by m, find mnth term. पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, कंफ्यूज हुए भी ना करो. कुशल शाह, आर यू हियर? यस सर. तुम लोगों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था क्या स्कूल में? हाँ सर था. ओके ग्रेट. मीशा एंड विनीत एंड मुस्कान, ऑल थ्री ऑफ यू आर करेक्ट. a plus m minus 1 into d 1 by n है. a plus n minus 1 into d 1 by m है. तो जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो. नहीं श्रेया, नो नो नो. क्या हो जीवतेश? आंसर आएगा तो मैसेज कर. यस यस करेक्ट जीवतेश, यू आर राइट. ओम नहीं, दैट मतलब d is some symbol which we don't know. आंसर डी के टर्म्स में नहीं आएगा. पर्व, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. चेक करना. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a और a कैंसिल हो जाएगा. दैट इज वेरी नेचुरल. फिर बाकी d कॉमन आएगा. d टाइम्स m माइनस 1 माइनस ऑफ n माइनस 1 is equals to 1 by n minus 1 by m. m minus n into d equals to, इसको एलसीएम लेते हैं, m minus n divided by mn. m minus n कैंसिल हो जाएगा क्लियरली. तो d का वैल्यू 1 by mn आएगा. d का वैल्यू 1 by mn आएगा. फिर a ढूंढने के लिए मेहनत करना पड़ेगा. आर्यन इज राइट, ऋषि इज राइट, अर्चित इज ऑल्सो करेक्ट. चेक करना पर पॉजिटिव आना चाहिए. श्रेयस इज राइट. There is Shreya also and Shreyas also, right, in this class? Let me just check. हाँ. That's right, Parv. अच्छा अच्छा ओम, या
बट mn नहीं ढूंढना है, mnth टर्म ढूंढना है ओम। mnth टर्म मतलब a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, ये ढूंढना है। Yes, sir. नो शौर्य, मिस्टेक हो गया तेरा। नो पार्थ। डी का वैल्यू 1/mn सबका आ गया क्या? यस सर। इशफाक नो। ए का वैल्यू मिस्टेक कर रहे हो। ए का वैल्यू के लिए ये 1/mn फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। a प्लस m माइनस 1 इंटू 1/mn इज इक्वल्स टू 1/n। ध्यान से करना। a प्लस m माइनस 1/mn को क्या स्प्लिट कर रहे हो कि क्या कर रहे हो? तो पूरा मल्टीप्लाई करके लेफ्ट साइड में माइनस कर ओके दिया। ओके ओके, मैं ऐसे करने वाला था। m माइनस 1/mn मतलब m/mn माइनस 1/mn इज इक्वल्स टू 1/n। तो m/mn इज 1/n और ये 1/n और ये 1/n भी कैंसिल हो जाएगा, तो a का वैल्यू भी 1/mn ही आएगा। आई थिंक आई एम राइट। डिड अदर्स आल्सो गेट द सेम? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Om is right, Manav is right, Anandita is right now. A is 1/mn, D is 1/mn। तो अभी ये ढूंढना है 1/mn प्लस mn माइनस 1 इंटू अगेन 1/mn। चेक करना इशफाक क्या मिस्टेक हो रहा है। तो क्लियरली 1/1 कैंसिल हो जाएगा, फिर mn भी कैंसिल हो जाएगा। The answer is 1, which many of you sent me right now. Arya is right, Parva is also right. तुम लोगों ने लास्ट टाइम क्या कोड बोला था, कौन से परवा को क्या बुलाने के लिए? Like how do you guys call each other? Any surname? सर जो अच्छा, V without A वाला है वाले को सीरिया है। PARV। हाँ अच्छा, हाँ। PARV सीरिया। ओके सीरिया। तो अपना रोल नंबर ही सीरिया करके चेंज करा। ठीक है। ओके सीरिया तेरा सरनेम है क्या? हाँ सर। सही RI है कि RY है? या कंट्री वाला? SIRIA। ओके ओके, नो वाई। हाँ सर। Okay. Should I wait others or is it done? ठीक है, किसी को डाउट है तो आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन। इट्स ऑल कैलकुलेटिव, वैसे nth टर्म ही लिखा है, बस कैलकुलेशन में है। ठीक है, एरेज कर रहा हूं यार ये सब कुछ। Was it tough और लेंदी या कुछ भी नहीं समझ आ रहा है? क्या है सिचुएशन? मतलब इजी था सर। इससे टफ क्वेश्चंस कर सकते हो क्या या इतने लेवल के? एक और क्वेश्चन करो। If the pth term of an AP is A, if the pth term of an AP is A, qth term of an AP is B, rth term of an AP is C, then find the value of the expression A times Q minus R plus B times R minus P plus C times P minus Q. If the pth term of an AP is A, qth term is B, rth term is C, then find the value of A times Q minus R plus B times R minus P plus C times P minus Q. Okay.
Sir, this A does not stand for first term, correct? No, that is just to confuse you. So pth term is A अगर कोई बोले तो pth term को ऐसे लेना, capital A plus P minus 1 into D, फिर capital A is your first term now. ठीक है, this is a very common thing they do. Did anybody else have the same confusion what she had? Should I use X instead of capital? Yeah, definitely you can X or capital A or whatever, any other symbol other than small a. Vineet, you are right. I'll give you 2 to 3 minutes more. Give it a try. Nisha is right. Muskan is right. Yeah. Okay. Parv is right. Garv is also correct. Can you guys tell me what are you doing? जिसने भी आंसर करेक्ट भेजा. बोलो निशा. हाँ. टर्म में पहले टर्म में सब्स्टिट्यूट करना है, फिर मतलब जो nth टर्म वाला जो फॉर्मूला है उसमें सब्स्टिट्यूट करना है, फिर जो आपने नीचे वैल्यू दिया है उसमें सीधा सब्स्टिट्यूशन करना है. फेयर इनफ. हाँ जीवितेश यार, ऐसे पागल की तरह कितनी बार भेजेगा. ओके. मैंने तो मल्टीप्लाई किया कुछ. आर्य इज राइट. आर्यन सॉरी. श्रेया इज राइट. हाँ, मल्टीप्लाई मतलब क्या किया? तो पहला वाला टर्म जैसे मुझे a माइनस बी प्लस पी डी आया. ओके. श्रेया इज राइट. ऋषि इज राइट. इनफैक्ट मेनी ऑफ यू आर राइट. ओके, बाकी लोग बता सकते हो कि वो सही है, मल्टीप्लाई करके कर सकता है. और कोई बता सकते हैं क्या कर रहे हो? साई इज राइट. बता जीवितेश कैसे किया? सर Q माइनस R और रेस्पेक्टिवली वैसे ही. ओके, आई डू नॉट क्लियरली Q अंडरस्टैंड. माइनस R, R माइनस P, P माइनस Q वैसे करके. हाँ, मतलब एक दूसरे से. क्या? सर Q माइनस R किया और उसके बाद R माइनस P और P माइनस Q वैसे करके किया मैंने. ओके. एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट किया. हाँ. पर सीरिया नहीं यार, गलत हो गया. ओके, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा है सीरिया लास्ट में. नाउ यहाँ पे like Jivitesh has said, like what others, like first few students what they have said is a की जगह a plus p minus 1 into d, यहाँ पे पूरा वैल्यू पुट कर दिया. a की जगह a plus p minus 1 into d पुट कर दिया. that is fair enough. a plus p minus 1 into d into q minus r. फिर b की जगह भी ये पूरा वैल्यू पुट करेंगे और c की जगह भी पूरा वैल्यू पुट करेंगे और पूरा का पूरा सिंप्लीफाई करेंगे. that is one particular way which is correct. And another way which I wanted to tell here is q minus r. Can you guys generate q minus r by doing something here? Yes sir. A minus b, b minus c, c minus a, ये तीनों के वैल्यू निकाल सकते हैं. इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a और a कैंसिल हो जाएगा. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a कैंसिल होने के बाद बचेगा क्या? q minus r d into q minus r. Yes, is equals to b minus c. Yeah, q minus r is basically b minus c divided by d. b minus c divided by d.
So this first expression will become a times b minus c divided by d. a times b minus c divided by d. तो सेम लॉजिक बाकी सबके लिए भी करो. b टाइम्स r माइनस p क्या होगा? किसको किसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? माइनस है c माइनस a बाई d हो जाएगा. और लास्ट वाला c टाइम्स p माइनस q के लिए फर्स्ट एंड सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, चलो हम a माइनस b बाई d. इसको एलसीएम करेंगे तो अपॉन d आएगा. देखना सीरिया क्या मिस्टेक किया, ऊपर फिर मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा. ab माइनस ac प्लस bc माइनस ab प्लस ac माइनस bc ऐसे आएगा. सब कुछ कैंसिल होकर 0 बचेगा यार, 0 बाई d और 0 विल बी द आंसर. तूने सब कैंसिल करके शायद 1 लिख दिया वियर्डली. ओके, बस बेसिकली कैलकुलेशन ही है. हाँ ओके, पर वही बाकी नेचुरल मेथड भी करेक्ट ही है. एक ही जगह पूरा का पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पुट कर दोगे तो भी वही बात है. उसको भी थोड़ा सा 3 एक्सप्रेशन की जगह 6 एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना पड़ता. ओके, वंस अगेन हो गया तो बताओ लिख के. बस जनरल टर्म ऑफ एन एपी पे बस, इससे ज्यादा और कुछ टफ नहीं आएंगे. बट अंडरस्टैंड दैट जनरल टर्म पे क्वेश्चन है और थोड़े करेंगे इफ पॉसिबल टुडे. हो गया या हो रहा है? लिख रहे हो बाकी लोग? हो गया सर. हो गया. ओके, एक की बात पे मैं जा रहा हूँ. किसी को रोकना है तो रोक सकते हो यार, फील फ्री. सर 2 मिनट. हाँ हाँ, तुम लोग को लिखने के लिए टाइम चाहिए तो जरूर पूछो, नो प्रॉब्लम एट ऑल. तुम में से मार्गदर्शक ग्रुप में आज कोई था क्या 62 63 नंबर वाला? ठीक है. हो गया तो बताना युग. हाँ सर. ओके सही. ओके नाउ नेक्स्ट वन. ये बताओ, 3 नंबर्स ए बी सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो कंडीशन क्या है? b minus a equals to c minus b. हाँ, if ABC are in AP, then the condition is basically B minus A is equals to C minus B. इसमें किसी को डाउट है क्या? नो सर. इसी कंडीशन को रीअरेंज करके भी लिख सकते हो. रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? p plus a upon 2. Yes, or we can say that 2B is equals to A plus C. If 3 numbers ABC are in AP, we can say one of these two, either B minus A is equals to C minus B or 2B is equals to A plus C. This is general knowledge. I don't know स्कूल में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है या जो भी है फटाफट लिख लो just in a minute. इसके ऊपर एक क्वेश्चन देता हूँ. हो गया, एरेज कर दूं? हाँ सर. ओके नाउ अच्छा, एक और चीज भी है, वो भी बता ही देता हूँ, बता ही रहा हूँ तो नोट करके लिख सकते हो. तुम लोग थोड़ा लॉजिकली सोच के बताओ. इफ ABC are in AP, if ABC are in AP, will minus A minus B minus C, will they also be in AP? Yes sir. Yes sir. ABC Yes, AP में sir. रहेंगे तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी भी AP में रहेंगे, AP में रहेंगे. ओके, व्हाट अबाउट A प्लस के, B प्लस के, C प्लस के?
यस सर। Yes, sir. Yes, sir. एपी में रहेंगे। यस अच्छा, व्हाट अबाउट k into a, k into b, k into c? ये भी एपी में रहेंगे। नो सर। नो चेक सर। कर लेते एपी में है कि नहीं। चेक करने के लिए हम लोगों को ये चेक करना पड़ेगा कि कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं। ओरिजिनली एबीसी एपी में है तो बेसिकली बी माइनस ए और सी माइनस बी इक्वल है। दैट वाज द इनडायरेक्ट वे ऑफ टेलिंग। तो Yes, इन sir. दोनों का कॉमन डिफरेंस हो जाएगा k टाइम्स b माइनस ए और इन दोनों का कॉमन डिफरेंस हो जाएगा k टाइम्स c माइनस बी। आर दीस टू इक्वल? यस सर। यस सर। b माइनस ए सी माइनस बी इक्वल है तो k टाइम्स b माइनस ए और k टाइम्स c माइनस b भी इक्वल है। लाइक यू कैन चेक विद एन एग्जांपल। 135 एपी में है तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 10 भी एपी में रहेंगे क्या? यस सर। Yes, sir. व्हाट अबाउट 1/2, 3/2, 5/2? यस उनका भी कॉमन डिफरेंस नहीं, जीपी में नहीं रहेंगे। जिसने भी मैसेज किया सर। एपी में रहेंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके अच्छा, व्हाट अबाउट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर? नो No, sir. No, sir. सर। a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर वो एपी में रहेंगे? नो सर। नहीं, sir. ये एपी में नहीं रहेंगे, ये एपी में रहेंगे। व्हाट अबाउट दिस a by k, b by k, c by k? यस सर। Yes, Yes, sir. वो एपी में Yes, sir. रहेंगे। तो एपी को कांस्टेंट ऐड करो, कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट करो या कांस्टेंट मल्टीप्लाई करो या कांस्टेंट डिवाइड करो, एपी में रहेंगे। स्क्वायर कर देंगे तो एपी में नहीं रहेंगे। ऑल्सो अगर मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछूं इसी चीज को, देखो एबीसी एपी में है और XYZ भी एपी में है। ओके, एबीसी एपी में है, XYZ भी एपी में है, तो इनका एडिशन a प्लस एक्स, बी प्लस वाई, सी प्लस जेड, ये एपी में रहेंगे क्या? a प्लस एक्स, बी प्लस वाई, सी प्लस जेड? यस सर। यस सर। कैसे बता रहे हो, यस या नो? सर क्योंकि b माइनस ए इज इक्वल टू y माइनस एक्स, तो मतलब हाँ, b माइनस ए और c माइनस बी इक्वल है, y माइनस एक्स और z माइनस वाई भी इक्वल है। b माइनस ए इन और दोनों y का माइनस एक्स सब्ट्रैक्शन, का इन दोनों का रेशियो सब्ट्रैक्शन सेम। सेम रहेगा क्या? हाँ Yes. बोलना माना। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होगा? b माइनस ए प्लस वाई माइनस एक्स, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा c माइनस बी प्लस जेड माइनस वाई। एपी में रहेंगे क्या? तो कॉमन डिफरेंस तो सेम ही है, यस सर। एपी में Yes, रहेंगे। sir. व्हाट अबाउट a इंटू एक्स, b इंटू वाई, c इंटू जेड? सर हाँ बोलो। सर आप इसके लिए एक एग्जांपल दे सकते हो? नो सर, ये नहीं होगा। तू बता, एबीसी 3 नंबर्स बता जो एपी में है। सर 1 2 3 फेयर एनफ। और एक 3 नंबर बता जो एपी में है। एपी में अबे, 2 6 10 4 5 हाँ 2 6 10 ठीक है। अब बता एडिशन। 3 3 9 9 13। 8 और 13 हाँ सर एपी में रहेंगे क्या? हाँ सर। ठीक है, वही बता रहा था। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन नो सर। 2 12 और 30 वो नहीं रहेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन विल नॉट बी इन एपी। ओके, ये सब जो भी बोर्ड पे लिखा है दिस इज जस्ट जनरल नॉलेज। क्वेश्चंस आते हैं इफ एबीसी आर इन एपी देन करके, ये सब ऑप्शंस में रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो एग्जाम में तो स्टूडेंट्स एबीसी आर इन एपी तो 1 2 3 लेके सारे ऑप्शन नंबर्स चेक कर लेते, पर तुम लोगों को थोड़ा सा लॉजिकली भी समझ में आना चाहिए। ओके, यशवर्धन तेरा डाउट नहीं क्लियर हुआ मुझे। व्हाट इफ वैल्यू आर डिफरेंट? अच्छा ओके, क्लियर हो गया, चलेगा। ये कॉपी कर लो फटाफट। इज दिस जनरल नॉलेज या फील से आ रहा है क्या करेक्ट है करके? ठीक है ठीक है। मुझे एक्चुअली समझने में ही टाइम चले जा रहा है कि 10th स्टैंडर्ड में कितना पढ़ाया है। आर वी बियॉन्ड 10th स्टैंडर्ड और डूइंग 10th स्टैंडर्ड लेवल? सर ये सब नहीं किया 10th में। अच्छा ठीक है ठीक है। तो 10th में क्या जनरल किया? प्रॉपर्टीज थे थोड़े, ये हाँ, थोड़े जनरल प्रॉपर्टीज दिए हुए थे, बस
कहीं पे सम्स में ज्यादा यूज नहीं आया था 10th में। अच्छा अच्छा ठीक हाँ, है सम्स में वो जनरल वाला कैंसिल कर दिया नंबर। एक सर इसको सम्स sums में बहुत ही सिंपल था। ओ मतलब कैसे रहते हैं? सर लाइक वो जो आपने पहला सम दिखाया था ना, उसमें a plus n minus 1d वाला था ना, अच्छा वो और सम दोनों का खाली अब तो फॉर्मूला ऐसे तो नहीं रहते ना कि वो ए तो दिया अलग है डी दिया है फाइंड 10th टर्म। नो सर, वैसा भी था मतलब थे मतलब वैसा भी हाँ सर वैसा भी था, पर आगे थोड़ा लेवल है कि वो तो 6th स्टैंडर्ड लेवल हो जाएगा यार। 8 हाँ दिया है सर। डी दिया है 10th टर्म ढूंढो तो ठीक है चलेगा। इसके टाइप में मैं एक सम दिखाता हूँ कैसे यूज कर सकते हैं। ओके पर्व, बाकी लोगों का भी लिख के हो गया तो बताओ। तुम लोग का मॉड्यूलस खत्म हो गया क्या? शायद से एक लेक्चर। हाँ सर मतलब Okay. 2 लेक्चर से बोलता है। ओके होने के बाद बताओ। मॉड्यूलस पे भी एक दो क्वेश्चन दूंगा नेक्स्ट टाइम, मॉड्यूलस और एपी को मिक्स करके। ओके मिशा, बाकी लोगों का भी हो गया तो बताओ लिख के। तुम लोग दूसरे क्लासेस में भी नोट्स लिखते हो अच्छे से या सर वेट करते हैं कैसे? हाउ डू यू गिव ए सिंबल? यू गिव लाइक सिंबल और समथिंग, थम्स अप और समथिंग? सॉरी पूछते हैं। अच्छा अच्छा, सर हेमंत सर बहुत टाइम देते हैं। बहुत टाइम देते हैं लिखने के लिए? यस सर। हाँ सर हेमंत शर्मा सर। ओके तो मुझे भी ज्यादा टाइम देना चाहिए क्या टाइम लिखने के लिए नो या? सर, नो सर। नहीं सर बहुत कुछ ज्यादा ही टाइम दे देते हैं। अच्छा ओके ओके, तो भी तुम लोग बोल सकते हो कि सर हो गया आगे बढ़ो। सर क्यों बोलना। अच्छा कोई बोलता ही ओके नहीं है और ऊपर से आंसर देना रहता है ना, तो फिर किसको पता किसका आंसर सही है। ओह, अच्छा वो लिख के आंसर सही है। मैंने सुना सौरभ सर के क्लास में वीडियो कंपलसरी रहता है। हाँ सर अभी लास्ट 2 हाँ लेक्चर सर कोई नहीं करता मतलब सर। स्टार्ट में तो आधे सुबह लोग सुबह करते हैं करना फिर पड़ता है। आज भी मैं और सौरभ सर भी बात कर रहे थे कि तुम्हारे क्लास में सबसे ज्यादा थोड़ा बात करते हैं स्टूडेंट्स करके। सर वो लेकिन क्लास के फ्लो में सर भूल जाते हैं। क्या फिर थोड़ा क्लास में? बीच में ब्रेक आता है ना तो उनको याद आता है कि कैमरा किसी ने ऑन ही नहीं किया है। ओह अच्छा सर सुबह सुबह चालू करने बोलते हैं। हाँ तो तुम लोग मतलब तैयार बिना तैयार हुए बैठते हो क्या ऐसा? ओ सर सर सुबह बट सुबह मेकअप नींद तो में करना रहते है नहीं ना। कोई बट स्टार्टिंग में अटेंडेंस होता है इसलिए करना पड़ता है। कभी कुछ वीडियो में कोई कुछ पकड़ा गया क्या कुछ करते हुए? नहीं ओके ठीक है। मैं अंशुल तिवारी तुम्हारे क्लास में नहीं है ना, रेड हाउस में है शायद। एक बार वो वीडियो ऑन कर दिया और वो चैटिंग कर रहा था कीबोर्ड के ऊपर, तो आई कॉट हिम। सर वो सच है पूरा। सर बहुत मस्ती करता है वो रिस्पॉन्स पे। हाँ वो तो है ही, वो तो ऑब्वियस ही है। इधर है। ये वाला क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करना। इफ 1 by b plus c, 1 by c plus a, 1 by a plus b are in AP, prove that a square b square c square are also in AP. Prove that a square b square c square are also in AP. तो पहले जो गिवन क्वेश्चन है वो एपी में है, तो पहले उसका कंडीशन लिख दो। मतलब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, मतलब सब्ट्रैक्शन इज बेटर एज फार एज सिमेट्रिक टर्म्स आर देयर। 1 by c plus a minus 1 by b plus c should be same as 1 by a plus b minus 1 by c plus a. अभी तुम लोग मैनिपुलेट करो इसके आगे। स्टार्ट विद दिस इज बेटर। इफ these are in AP तो दिस सब्ट्रैक्शन। किसी ने बोला सस है वो बहुत ज्यादा, तो तुम लोग Among Us वगैरह खेलते हो क्या? हाँ सर कभी कभार खेलते हैं। हाँ सर खेलता है। Like do you play Among You? यस सर मतलब अगर वीसी पे बैठे रहेंगे तो फिर खेल लेते हैं। वही थोड़े दिन के बाद बोर हो जाता है बट है फन। लाइक डिस्कॉर्ड पे ऑनलाइन रह के खेलो तो ज्यादा मजा है।
वेरी नाइस मुस्कान. तुम्हारा कोई मैथ्स का टेस्ट हुआ क्या टॉपिक वाइज? नो सर. अच्छा, सर बता रहे थे, आई डोंट नो किसका हुआ था. गुड वन आर्यन. जल्दी करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और फोकस, कुछ कुछ कैंसिल हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद. गुड वन ओम मिशा. नाइस सिरिया एंड पर्व, बोथ ऑफ यू. सर वो फिर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. एग्जैक्टली. हैव ए लुक कि प्रूव क्या करना है. यहाँ पे न्यूमरेटर में b माइनस ए बाई बी प्लस सी इज इक्वल टू सी माइनस बी बाई ए प्लस बी. इसके बाद भी नेचुरल है, यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व दैट b प्लस ए प्लस बी आर सेम. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b माइनस ए इंटू बी प्लस ए हो जाएगा, which is become b square minus a square, और इधर c plus b into c minus b, that will become c square minus b square. Since b square minus a square is c square minus b square, तो वही प्रूव करना है. That's right इशफाक, वही प्रूव करना है. b square minus a square और c square minus b square सेम है, तो we can say that इनका कॉमन डिफरेंस है. So or we can say that they are in arithmetic progression. Okay. Is it tough or easy? सर इजी है. है ना, ठीक है. चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Should I erase it or should I wait? Anybody? Just a minute, the last line. Yeah. किसी को डाउट है तो पूछो यार, डेफिनेटली. बार बार बोलता हूँ मैं हर थोड़ी देर में, बट समझ नहीं आता एक्चुअली. ऑफलाइन क्लासेस होता है तो चेहरा पढ़ के समझ में आ जाता. Sir, done. ये स्कूल में किया होगा, बट स्टिल बता देता हूँ. एपी में 3 टर्म्स कंसिडर करना है. कंसिडर 3 टर्म्स इन एन एपी अगर कोई बोले तो कैसे अज्यूम करना एडवाइजेबल है? A A minus minus D, A A minus plus D, D. A plus D. That is perfectly correct. To consider 3 terms in an AP, A minus D, A और A plus D consider करना अच्छी बात है. Consider. Okay. How should I consider 4 terms in an AP? 2D ले. A minus 3D, A minus D, A plus D, A plus 3D. That is right. This is a better way to consider 4 terms in an AP. तो इनकी वजह से ना कैलकुलेशन इजी हो जाएगा. A minus D, A plus D वगैरह से लिए. Also notice that 4 terms in an AP में common difference कितना होगा? 2D. Common difference 2D होगा. Common difference 2D. Also last one 5 terms in an AP होता तो A minus 2D, A minus D, A plus D, A plus 2D. मतलब 3 terms वाले में ही एक आगे और एक पीछे. 6 terms कंसिडर करने के लिए बोलते तो A minus 5D. 5D से A plus 5D तक जाएगा. ठीक है, इसको लिख लो फटाफट. It might be in school, but still just formality that I have to do. हाँ सर, ऐसे सब आते थे. ओके. चलेगा, तो फिर इसके ऊपर भी थोड़े क्वेश्चंस करते हैं.
हो गया लिख के? यस सर। ओके, इज जस्ट नोटिंग 3 टर्म्स इन एनएपी। ये भी सारे बोर्ड्स में था क्या? सीबीएसई एंड कुशल? ठीक है, ओके नेक्स्ट, डन। If AN is an AP, if AN is an AP, just digest the language. If AN is an AP and A3 is equals to 2, find A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5. Okay, ये जो फर्स्ट लाइन है, if AN is an AP, in other words, that's right माना, in other words, if A1, A2, A3, A4, A5 dot 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 are in AP, को ये सब कुछ लिखने की जगह ऐसे लिखा है. That is the way to write it. Just don't get confused. Parv, you are right. तो A1, A2, A3, A4, A5 AP में है और A3 का वैल्यू 2 दे रखा है, तो A3 का वैल्यू 2 दे रखा है. ओके, तो A4 का वैल्यू विल बी A2 प्लस D. A4 का वैल्यू 2 प्लस D रहेगा, 2 प्लस D रहेगा. व्हाट अबाउट A2 का वैल्यू? 2 माइनस D रहेगा. दैट्स इट. फिर और क्या आंसर बताओ यार, इतना टाइम क्यों जा रहा है? जिनेंद्र राइट, मानव राइट, जल्दी करो. या आर यू टू लेजी टू टाइप सच एन इजी आंसर? तो भी बताओ. हिया, इशफाक, क्रिश, शौनिश, युग राइट, आर्यन राइट. हाँ वही है पर्व. शौनिश, आर यू देयर? सिरिया, आयुष इज आर राइट. 2 माइनस 2D और वो 2 प्लस 2D हो जाएगा. इन सबको एडिशन ही ढूंढना है, इन सबको एडिशन ही ढूंढना है. इन सबको एडिशन 5 times 2 है, दैट्स ऑल. बाकी सब कैंसिल हो जाएगा. यू आर ऑल करेक्ट. श्रेया, सोहम, श्रेयस, तविश. ओके, आई एम जस्ट अनएबल टू फाइंड. कुशल, आर यू देयर? कुशल एंड शौनिश, बोथ ऑफ यू. यस सर. शौनिश, ओके. कोई जानता है क्या इसको? यस सर. अच्छा, Yes, sir. अच्छा, आर यू देयर? सर हम लोग हैं. नहीं, शौनिश कोई जानता है क्या? हाँ, sir. हाँ मैसेज सर. करना कहाँ पे है. व्हाई आर यू नॉट टॉकिंग? डिड यू स्लीप? सर वो व्हाट्सएप हार्डली खुलता है. हाँ, व्हाट्सएप नहीं खोलता है. खोलता है कि खोलती है? खोलता है. लड़का है. ओके. इशफाक, दर्श, यस यू आर राइट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाते हैं. सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, थोड़ी देर में रोल कॉल ले लूंगा, वही बेटर है. सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्कूल में पढ़ा है क्या सबने? यस Yes, sir. हाँ sir. Okay. Kushal, Yes, you sir. also? हाँ, that is right, Yug. Very fast. Okay. Sum of arithmetic progression derive कैसे करते हैं? सर लाइक फर्स्ट टाइम उसको फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म तक लिखते हैं, फिर लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म तक लिख के दोनों को ऐड करते हैं. That is correct, Darsh. Perfectly said. Okay. Now, मतलब just a simple thing. This is very small. 5 minutes में मैं बता देता हूँ. तो फर्स्ट टाइम ये जो टास्क जो है, it is a very famous story. ये रामानुजन, there is a mathematician. I hope everybody knows his name. 1 2 3 4 7 until 9900 तक ऐड करना था when he was in 6th standard. तो इसको ऐड करना था as a practice of addition. तो what he has done first time is इस सीरीज को S मान लिया. तो वही सीरीज, वही S का वैल्यू will be the same if we write it as 100
plus 99 plus 98 and so on until 321 also. It will also result in the same value. तो what he has done is 2s करके दोनों को ऐड कर दिया, 2s ऐड करके 1 और 100 को ऐड किया 101, 2 और 99 को ऐड किया वो भी 101, ऐसे 101 101 कितनी बार आएगा? 100 times, 100 times. So 2s is equals to 101 100 times, 101 into 100, और s का वैल्यू ऐसे करके सॉल्व कर लिया. So this was the first time he has evaluated the sum of first 100 natural numbers, which is 5050. Now this is also resulting in a very simple trick. You guys remember it. Sum from 1 to 10, 1 to 10 numbers का addition is basically 10 का आधा करो, 10 का आधा 55 is the sum of 1 to 10 numbers. तो 1 to 100 numbers का addition है 100 का आधा 5050. ऐसे 1 to 1000 का addition होगा 500 500 500. So that is a shortcut to remember. This is only applicable for 10 का powers. ठीक है? ओके. इसके चक्कर में एक और फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हो, 1 + 2 + 3 so on until n. इसका फॉर्मूला स्कूल में था क्या? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. यस सर, n -1/2. n +1/2. हाँ सर. सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है, जो भी बोर्ड पे है फटाफट लिख लो, फटाफट लिख लो, एंड देन विल मूव ऑन टू सम ऑफ एपी ऑफिशियल फॉर्मूला व्हिच यू गाइस आर टेलिंग. ओके कुशल, हर क्लास में, मेरे क्लास में ही होता है, कभी तो आउट ऑफ सेशन रहता है कभी. ठीक है बट चलेगा. लेकिन ऐसा कौन सा स्कूल है जो फंक्शन कर रहा है? फंक्शन इज नॉट इवन अलाउड. स्टूडेंट्स को बुला के फंक्शन करना तो वियर्ड है. अरे मार्कशीट लेने को फंक्शन थोड़ी बोलते हैं. ठीक है, वो मार्कशीट लेने जाना है बोल रहा है, उसको फंक्शन बुला रहा है. ठीक है. सर आईसीसी का तो रिजल्ट आएगा अभी. हाँ स्टेट बोर्ड का था. बट ठीक है चलेगा. और क्या व्हाट आई वाज सेइंग, शौनिश आर यू देयर? ठीक है, पुट इन वेटिंग रूम. ओके ओके कुशल. बाकी मानव इज आंसरिंग, आनंदिता इज देयर, अनुष्का आर यू देयर? Yes, sir. Archit? Yes, sir. Aryan have answered. Ayman, sorry. Are you there? Ayush has answered. Darsh, Dev, Divyanshu? Okay. Gitansh, are you there? Yes, sir. गीतांश है क्या? गीतांश. Yes, sir. Okay. Next, Hitesh. Yes, sir. Hiya is here. Ishfaq is here. Jinendra, Jivtesh, Krish, Manav, Mansi, Misha Mishri, Moksh Panchal and Mansi. Are you guys there? Yes, sir. Okay. मोक्ष अच्छा हो गया, सिंसियर हो गया. मुस्कान, पार्थ, परवस, ऋषि भी आंसर देता है. प्रथम, आर यू देयर? Yes, sir. रुचि, शगुन, शौर्य, श्लोक, रुचि एंड श्लोक. श्लोक, आर यू देयर? यस. तनय एंड विवान लास्ट. ठीक है, सिर्फ शौनिश ही है जो आंसर नहीं दे रहा है, जाने देते हैं. ओके, कर दो एरेज ये. मानव बता, कुछ काम है तो. सर हाँ बोल ना.
सर ये आपने n plus 1/2 दिया और सर एक और फॉर्मूला था फॉर द सम ऑफ n टर्म्स सम वो ऑफ n/2 2a plus n minus 1 d तो हाँ सर वो बस डिराइव कर रहे हैं सम ऑफ एपी अप टू एन टर्म्स, बस वो मैं डिराइव कर रहा हूँ, जस्ट ए फॉर्मेलिटी। डिराइवेशन भी स्कूल में था क्या? यस तो फॉर्मूला लिख दो चलेगा क्या? यस सर। वो भी सेम ही तरीका है, रिवर्स करके लिख देंगे। सम ऑफ एपी इज गिवन एज n/2 टाइम्स 2a plus n minus 1 into d, फिर a इज द फर्स्ट एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। इसी को एक और तरीके से भी लिखते हैं, और कैसे लिखते हैं? प्लस एल n/2 a plus tn a a plus plus l, tn। हाँ l मतलब बेसिकली द लास्ट टर्म। ओके, जल्दी लिख लेना एज अ फॉर्मेलिटी एंड देन विल प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन दिस। लास्ट फॉर्मूला नहीं लिखा, लास्ट फॉर्मूला वापस लिख दो। ओके, लास्ट फॉर्मूला ये था कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स मतलब ऑफ कोर्स 1 plus 2 plus 3 so on until n, इनका एडिशन है n into n plus 1/2। इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं n/2 टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n/2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इज 1 लास्ट टर्म इज n। ओके, जल्दी लिख लो बाकी लोग, हो गया तो बताना यशवर्धन, स्पीड अप। ओके ओके, हाँ एक मानव का नाम भोजू है, यस यस दैट आई रियलाइज। इज मानव इन दिस क्लास, बोथ द मानव्स? मानव भोजू यहाँ इसी क्लास में है क्या? यस सर। अच्छा, तूने ही वो किया ना स्प्रेड दीपक सर का लिंक? सर वो आधा टाइम ध्यान नहीं देता। नहीं सर, नहीं सर। आई नो यार, नहीं सर, नहीं। लास्ट टाइम तुम लोग मजाक कर रहे थे, आई थॉट आई कंटिन्यू। यस, इज इट डन एवरीबॉडी इन द क्लास? बस सब टीचर्स को मालूम पड़ गया क्या हुआ था संडे को। नहीं 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 नहीं, ये सब इतना नहीं। मतलब बाकी सर्स को पूछा कि तुम लोग डिस्कॉर्ड वगैरह देखते होते, तो उन्होंने बोला व्हाट्सएप भी नहीं देखते, हम सब म्यूट करके रखा है। ओके, मैंने बोला ये एरेज कर दूं क्या? यस चलेगा। तुम लोग व्हाट्सएप का वगैरह का ग्रुप है क्या तुम्हारा? नहीं सर। ओके, लाइक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाना है क्या स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स का अलग से, और आई थॉट टू मच हो जाएगा? डिस्कॉर्ड है ना, वही दैट व्हिच इज एनफ इन माय ओपिनियन आल्सो। ओके, find the sum 100 square minus 99 square plus 98 square minus 97 square so on until, can you tell me लास्ट में क्या आएगा? लास्ट टर्म क्या रहेगा? -1 -1 स्क्वायर, हाँ उसके पहले +2 स्क्वायर। इवन वाले सारे प्लस में है, ऑड वाले सारे माइनस में है, इसका एडिशन ढूंढना है। राइट डाउन 100 स्क्वायर minus 99 स्क्वायर plus 98 स्क्वायर minus 97 स्क्वायर so on until +2 स्क्वायर -1 स्क्वायर। 2 मिनट ट्राई करो, आई कम बैक इन 2 मिनट्स। आंसर आ गया तो मैसेज करो।
Parv is right. Very nice. Om is also correct. Okay. What is the क्या करने का प्लान है? श्रेया is correct. सर a plus b a minus b. हाँ, a square minus b square करने का तो मन करना चाहिए. तो इन दोनों को कंबाइन करके a square minus b square करेंगे तो दिस विल कम 100 plus 99 into 100 minus 99. फिर इन दोनों को करेंगे तो 98 plus 97 into 98 minus 97 so on until लास्ट वाला आ जाएगा 2 plus 1 into 2 minus 1. Now 100 minus 99 is of course 1. That's right. Darsh, Jivitesh, Shreya, जिसने भी भेजा आंसर सब करेक्ट है. आनंदिता, वेरी नाइस यार, हैप्पी टू सी योर आंसर. नीशा इज आल्सो करेक्ट. ओके, नाउ 100 minus 99 1 है. 100 plus 99 को ऐड मत करो, ऐसे ही रहने दो. 100 plus 99 ही रहने दो सेपरेटली. फिर नेक्स्ट वाला ऐड करके 98 plus 97 हो जाएगा. हाँ सर, वो ऐसे 1 to 100 का एडिशन 2 plus 1 हो जाएगा. वैसे 1 to 100 का एडिशन आ जाएगा. 1 to 100 का एडिशन एक स्टेप का आंसर है 5050. That is the answer. Right, आर्यन, सिरिया. और किसी ने कुछ और तरीका किया क्या? ओके, हो गया तो बताओ. थोड़ा सा ट्रिकी था बट आई होप यू गॉट इट. Anybody else who has doubt here? Okay, should I wait or should I erase this? Okay, I am erasing it then. Okay, that is the next question. If the sum of first three terms, if the sum of first three terms of an AP, if the sum of first three terms of an AP is 27, the sum of first three terms of an AP is 27, and the sum of their squares is 293, and the sum of their squares is 293. Find sum to n terms. Find the sum to n terms. Sum to n terms का कोई symbol है क्या that you use? SN. SN. Yes, S suffix n. Find the sum to n terms. Find the sum to n terms. Give it a try.
Vineet, it's an incomplete answer, but that is right. मानव गलत है. सर दो आंसर है. हाँ, दो आंसर से. पर्व दोनों गलत है. तो स्क्वायर वाले का भी ढूंढना है. क्या? स्क्वायर वाले एपी का भी ढूंढना है. स्क्वायर वाले एपी का नहीं नहीं ढूंढना कुछ है. नहीं कुछ नहीं. समझ गया ना मिस्टेक? सबसे पहले 3 टर्म्स को क्या अज्यूम कर रहे हो बाकी लोग? A minus A minus D, A plus D. Yes, that should feel very natural. Let 3 terms be A minus D, A plus D. अरे हाँ, इसके पहले मैं भूल गया बीच में. मानव, कुछ इसके बाद कुछ टेस्ट वगैरह है क्या तुम्हारा? नहीं ऐसा नहीं. तो पूछ रहा था ना कि जल्दी वगैरह. Sum of first 3 terms is 27. So A minus D plus A plus D is 27. And sum of their squares, इन तीनों का squares का एडिशन 293 है. A minus D का स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A प्लस D का स्क्वायर 293 है. तुम लोग अटेंडेंस से कौन से मैम लेते? आशा मैम लेते, कृतिका मैम लेते, पता है क्या? कृतिका मैम. थैंक यू. गर्श, दैट इज फाइन, बट क्वेश्चन कुछ और है. एक सेकेंड, मैं लेट मी जस्ट चेक. आंसर से बहुत लोगों ने भेजा. 1 मिनट गाइस. कहाँ से बताना था? पर्वा का रॉन्ग है, ओम कर भी रॉन्ग है, पर्व अगेन रॉन्ग. तूने 2 बार सेम चीज भेजा क्या? अरे वो तो समझ में आया यार. वो नीचे नहीं है बट वो रॉन्ग है. विनीत ऑल्सो रॉन्ग यार. ओके मानव, आई लीव ऑन टाइम. देन विनीत अगेन रॉन्ग, 2 बार भेजा बट स्टिल. श्रेया ऑल्सो रॉन्ग. हाँ 545 नहीं यार, 345 है. अरे यार मानव ठीक है ना, टेक इट इजी. आर्या रॉन्ग यार. गर्व, व्हाट इज दैट आंसर? ढूंढना क्या है? अच्छा, मैंने वो सिर्फ 3 टर्म्स का सम लिया. अरे वो तो गिवन ही है. पार्थ रॉन्ग, आयुष रॉन्ग, इशफाक रॉन्ग, पर्व इज राइट. वो डी का वैल्यू करेक्ट है पर्वा. दर्श, यू आर राइट, बट ओनली 1 आंसर यू हैव गिवन. मानव प्लस माइनस आएगा. यशवर्धन वहां तक करेक्ट है. एन को क्या ले? एन को एन ही रखना, आंसर एन के टर्म्स में आएगा. युग फॉर्मूला ही रॉन्ग यूज किया. nth टर्म नहीं पूछा है, सम टू n टर्म्स पूछा है युग. श्लोक, व्हाट इज दैट आंसर? ओके,
सर और मैंने बाकी दिया लोगों का आंसर नहीं आया, मुस्कान, मीशा, आनंदिता, वट एवर यू ऑल। सर मैंने दिया जीवतेश आई कुडंट, हाँ जीवतेश रॉन्ग है यार। सर अभी मैं सॉल्व करूँ ना, 2 मिनट रुक जाऊंगा मेरा हाँ हाँ जस्ट। चलेगा। युग रॉन्ग है, दर्श भी रॉन्ग है, एक सेकेंड, आनंदिता रॉन्ग है, आर्यन नो, आर्या रॉन्ग है, एक सेकेंड यार, बहुत सारे रॉन्ग आंसर्स आ गए मेरा वो युग भी रॉन्ग है, मे बी एवरीबडी इज डूइंग द सेम रॉन्ग मिस्टेक, क्योंकि सबका सेम ही रॉन्ग आंसर है। तो सबसे पहले ए का वैल्यू कितना आ रहा है? 9। 9। दैट इज सिंपल। इसको ए का वैल्यू 9 यहाँ पुट करके डी का वैल्यू सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सबसे पहले डी का वैल्यू क्या ले रहे हो? प्लस माइनस प्लस माइनस 5, दो आंसर्स आएंगे, प्लस माइनस 5 दो आंसर्स आएंगे। ओके प्लस माइनस 5, तो दो केसेस लेना पड़ेगा, केस 1 केस 2, दो आंसर्स आएंगे, दो आंसर्स। तो फर्स्ट केस में ए का वैल्यू 9, डी का वैल्यू 5 लेंगे। सेकंड केस में ए का वैल्यू 9, डी का वैल्यू -5 लेंगे। These are the two cases that you have to consider. So सबसे पहले that is why there are two answers. Now a का वैल्यू 9, d का वैल्यू 5 हुआ अगर तो ये थ्री टर्म्स क्या हो जाएंगे? What will be the three terms? 4, 9, 4, 9 and 14. a minus d is 9 minus 5, फिर 9 and 9 plus 5. Here a का वैल्यू d का वैल्यू -5 होता है तो थ्री टर्म्स will become 14, 9 and 4. अच्छा ये तो तीन टर्म्स ही है। अभी क्वेश्चन है सम टू एन टर्म्स, क्वेश्चन है सम टू एन टर्म्स। सम टू एन टर्म्स के फॉर्मूले में एसएन का फॉर्मूला है n/2 टाइम्स 2a plus n-1 into d. Now calm down and tell me here a क्या है? 4। a is first term। इस फॉर्मूले में a is the first term। तुम्हारा फर्स्ट टर्म भी a है क्या? नो सर। तुम्हारा फर्स्ट टर्म a नहीं है, तुम्हारा फर्स्ट टर्म a नहीं है। अरे यशोवर्धन क्वाड्रेटिक इक्वल टू 0 क्यों कर रहा है? सम टू एन टर्म्स इज जस्ट Sn इज इक्वल्स टू n/2 टाइम्स, इस वाले AP में 2 टाइम्स क्या लिख रहे हो? 4, यस 2 टाइम्स 4 प्लस n-1 into 5, इसको सिंप्लीफाई करो। और दूसरा है n/2 टाइम्स 2 टाइम्स 14 प्लस n-1 into -5. These are the correct answers. I hope everybody who has sent me the wrong answers gotten what they have made a mistake. So I think you are using 2 times 9. Yes, sir. Okay, this is a very common error. Just stop that. यशवर्धन क्या क्वाड्रेटिक सॉल्व बोल रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वल टू 0 थोड़ी बोला है। यस ए का वैल्यू बहुत ही कॉमन है, ए का वैल्यू 9 लेके सॉल्व कर लेते लोग, इसीलिए शायद तुम्हारा 13 और 23 जैसा कुछ वैल्यूज आ रहा है। आई एम गेसिंग क्योंकि 13 and 23 वाज सेंट बाय मेनी स्टूडेंट्स। Okay, those who haven't answered only, Muskan, Misha, Anushka, Anandita, are you girls following? Here, कंफ्यूजन हो गया था। क्या क्या? कंफ्यूजन हो गया था। Okay. Like I अभी got complete- A and D, but like I got stuck बाद में। Okay, okay. आंसर ही रॉन्ग दिया था। No problem, Muskan. But did you get the answer right? सर आई एम आनंदिता। Okay, okay, it's okay not to answer, Muskan. Yeah, okay, okay, okay. But solution समझ में आया तो डाउट है तो पूछ लो, you can text me. बाकी लोग समझ में आ रहा है क्या? ऋषि, बोस, यस सर। विधि, उत्कर्ष, तविश, तनय। हाँ नेक्स्ट टाइम देता हूँ, ये बस कॉपी कर लिया। यस सर।
Not so much. Yashovardhan. Okay. Chalega, I'm going to give the next sum. Is everybody done with this? Writing this? ओके अज्यूम कर रहा हूँ कि सबका हो गया ए एंड डी तो सबने शायद निकाल ही लिया सम टू एन टर्म्स पूछा है तो बस एस एन का फॉर्मूला में 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म रहेगा 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म रहेगा डोंट मेक दिस मिस्टेक ओके नेक्स्ट क्वेश्चन राइट ऑन okay how many terms right on how many terms of the sequence how many terms of the sequence 20 comma 19 1 by 3 comma 18 2 by 3 dot add up to 300 how many terms of this sequence add up to 300 these are mixed fractions I hope everybody knows what mixed fractions are yes sir इसमें किसी को डाउट नहीं है ना लाइक 19 1 by 3 मतलब क्या होगा 58 by 58 by 3 and 18 2 by 3 क्या होगा 18 into 3 56 by 3 56 by 3 थैंक यू क्योंकि मुझे किसी तो एक हाउस में आई एम नॉट श्योर आई थिंक इट इज पर्पल हाउस 19 1 by 3 को उसने 19 into 1 by 3 लिख दिया और बोला कि स्कूल में नहीं पढ़ाते आई वाज स्टम्प्ड बट आई होप एवरीबॉडी एल्स हियर नोस बट वो तो कुछ भी रीजन था ये तो 6th क्लास में 7th क्लास में पढ़ाते ही होगे ना मिक्स्ड फ्रैक्शंस या उससे भी यंगर एज में उससे भी यंगर होगा क्या क्या पढ़ाता है अरे वही तो है तो कुछ भी उसने बोला मिक्स्ड फ्रैक्शन स्कूल पे ब्लेम डाल दिया इधर है हाउ मेनी ऑफ दिस टर्म्स ऐड अप टू 300 दैट इज करेक्ट गर्व सर हाँ बोलो सर पता नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरे 2 वैल्यूज आ रहे हैं दो वैल्यूज ही आएंगे अच्छा तो मैं फिर आंसर टेक्स्ट करके बता करेक्ट है कि नहीं बताता हूँ हाउ मेनी ऑफ दिस टर्म्स ऐड अप टू 300 मतलब ये पूछा है कि 20 प्लस 58 by 3 प्लस 56 by 3 ऐसे करके n टर्म्स तक का एडिशन n टर्म्स मान लेते हैं n टर्म्स तक का एडिशन 300 बोल दिया है n टर्म्स तक का एडिशन 300 बोल दिया है तो n का वैल्यू कितना होगा तो बस सम टू n ओम करेक्ट है ओम एंड गर्व कैन यू गाइस थिंक व्हाई आर देयर टू आंसर्स तो सम टू n टर्म्स का फॉर्मूला यूज करें एक सेकंड बस बताना मत थोड़ी देर में पूछता हूँ तुझे पहले पूछता हूँ तो सम टू n टर्म्स का फॉर्मूला n by 2 times 2a plus n minus 1 into कॉमन डिफरेंस क्या ले रहे हो negative 2 by 3 that is perfectly said not positive 2 by 3 common difference is negative 2 by 3 that's right Garv T26 से that's right Misha बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है
सर बोलो। सर क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का कुछ ढंग का ट्रिक है क्या आपके पास? नहीं यार, वो मतलब फॉर्मूला मेथड होता है ना वो। फॉर्मूला में डाल के, मतलब मैं वो प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट होगा तो उसके बाद वो सब इजी लग जाएगा एक्चुअली। हाँ सर, नहीं मतलब मेरे दोस्त मेरे को टेस्ट में कुछ बताया था, बाद में उसको भूल गया, बट लाइक यूजुअली जो कांस्टेंट टर्म है उसको उसके फैक्टर्स ही ढूंढना है मतलब। हाँ सर वही करता, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है ना, पेयर्स बनानी पड़ती है, बाद में सोचना पड़ता है कि कैसे बना। वो तो है, हर बार इतना इजी नहीं रहेगा, बट परफेक्ट स्क्वायर बना के कर सकते हैं। आई डोंट नो परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है कि नहीं। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आया, किसी का आया? -61 n plus 900. हाँ, प्लस 900। सर 2/3 है डिफरेंस। अरे हाँ वही वही, मैं कुछ तो सोच रहा था क्या मिस्टेक हो रहा है। थैंक यू। इसको प्राइम फैक्टर्स कैसे किया? 25 36। -25 हाँ। मानव देखना 61 आना चाहिए। हाँ करेक्ट, ये n/3 होगा, मैंने कुछ रॉन्ग किया यहाँ पे। एक सेकंड पर डिस्कस करता हूँ। Okay. Quadratic equation सॉल्व करना, that was not the focus of the question, but still sum to n terms का फॉर्मूला Sn is equals to 300 करके पूरा इक्वेशन हमने सॉल्व किया। अभी ओम बताएगा, बाकी लोग भी समझो, बाकी लोग भी समझो। सम टू एन टर्म्स 25 और 36 दो आंसर्स आए, इसके दो आंसर्स क्यों आए ओम बताएगा अभी। सर वो जैसे 25 और 36 है, तो मतलब 36 तक जाएंगे तो कुछ वैल्यू आएगा जो नेगेटिव तक रहेगा। तो सर जो नेगेटिव का वैल्यू होगा ना, वो पॉजिटिव वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर वो 0 आ जाएगा। करेक्ट, तो सर आंसर 300 हो जाएगा। यस। तो बेसिकली गर्व एंड ओम दोनों ने सही बताया, और पर तू भी एक्सप्लेन कर सकता है कि व्हाट इज ही सेइंग कि सम टू 25 टर्म्स भी 300 है और सम टू 36 टर्म्स भी 300 है, दोनों का एडिशन 300 कैसे होगा? सर थोड़ा नेगेटिव में चला जाएगा। हाँ, क्योंकि 25 के बाद 26 से लेके 36 इन सारे टर्म्स का एडिशन 0 है, मतलब तो 26 से 36 के टर्म्स में थोड़े पॉजिटिव और थोड़े नेगेटिव टर्म्स थे, तो वो आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो एवेंचुअली इसलिए दोनों का सम ऑफ टर्म्स 300 ही आएगा। नेगेटिव में जाएगा बिकॉज कॉमन डिफरेंस देखो -2/3 है, तो कॉमन डिफरेंस कम होते जा रहा है। ओके सर इनफैक्ट सीरीज को भी देखेंगे तो वो पीछे ही जाता है। यस। किसी और को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? एनीबॉडी एल्स हु हैज डाउट हियर? नो सर। यस, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होता है तो दो आंसर्स नहीं होते, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इंक्रीज ही होते जाता दैट साइड पर। ओके, और किसी को कोई डाउट है क्या? एनीबॉडी इन द क्लास? सर बट अगर कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होता तो वी कैन ऐड एनी ऑफ दैट नंबर्स ना, मतलब ऐसे सीरीज में ऐड करना कंपल्सरी? सीरीज में ही ऐड करना है। सम टू हाउ मेनी टर्म्स, मतलब फर्स्ट टर्म से लेके कितने टर्म्स तक ऐड करेगा, तो 300 आ रहा है। ओके सर हाँ बोलो। अगर कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होता तो फिर हम लोग 36 लेते या नहीं, कि सिर्फ 25? कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होता तो दो आंसर्स आते ही नहीं, फर्स्ट टर्म 20 होता तो। ओके सर। ओके,
अच्छा, और किसी सर को अगर कोई भी- फर्स्ट हाँ, टर्म नेगेटिव होता और कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होता तो दो आंसर आ सकता है ना? यस, दो आंसर्स आ सकते थे, दैट्स राइट। ओके, क्वाड्रेटिक क्यों नहीं आया, मतलब क्या बोलूं यशवर्धन, माइक ऑन करके बता ना। ओके, और किसी को कोई डाउट है कि इस सम में? सई, हिया, दिव्यांशु, मोक्ष, इशफाक, अर्षित, बड़ी नो सर। ओके, चलेगा। आज के लिए क्लास खत्म करते हैं, और आज कोई होमवर्क नहीं है। आज सीक्वेंस एनालिसिस का फर्स्ट लेक्चर है, तो कोई होमवर्क नहीं है तुम लोगों के लिए। घर घर पे सॉल्व करने के लिए कुछ है कि मैथमेटिक्स में सॉल्व करने के लिए? सर आपने भेजा ना वो। सर वो डीपीटी था ना। हाँ, वो एक असाइनमेंट भेजा है और क्वेश्चंस मार्क किए थे। आई थिंक इज दैट एनफ टू सॉल्व इन दिस 1 वीक, और डू यू नीड सम मोर वर्क? सर ट्रिगो के सिवाय कुछ हो तो दो ना। ट्रिगो के हाँ सर ट्रिगो के सिवाय मैं नेक्स्ट वीक से दूंगा सीक्वेंस एंड सीरीज। सर मेरे को होगा तो मैं मांग लूंगा आपसे। क्या क्या? मैं मांग लूंगा बाद में आपसे। वो आपने मेरे को 2 एक्स्ट्रा डीपीटी दिए थे ना। तूने 3A 3B 3C खत्म कर दिया क्या? नो सर। तो सर करना वो वो। आपने एक्स्ट्रा दिए थे ना, वो कर रहा हूँ डीपीटी 5 और डीपीटी 6। हाँ, करो करो। और किसी को कुछ भी होमवर्क एक्स्ट्रा चाहिए तो जरूर बताओ, बट उसके पहले जो दिया है पहले वो तो कर लेना चाहिए ऑफ कोर्स। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? ओके, चलेगा गाइस, क्लास खत्म करते हैं आज के लिए। ठीक है, किसी को एक्स्ट्रा होमवर्क चाहिए तो दिस इज द लास्ट टाइम टू आस्क। बेसिक मैथ्स के सम्स दूं? अरे मॉड्यूल है ना यार यशवर्धन, उसका होमवर्क खत्म हो गया तो सौरभ सर को पूछना, सौरभ सर भेज देंगे, एसपीएम सर। ओके, चलेगा, एक सेकेंड।